Let us start a new chapter, current electricity. ठीक है. Now first topic, electric current. What is the electric current? The rate of flow of charge through a wire is called electric current. So it is the rate of flow of charge through any section of the wire. So therefore current I is charge by time, and from quantization of charge we know that Q is NE by time. ठीक है. So if NE by time, it's all right. Now for numerical purpose, एक when electron is moving in a circular path of radius r with velocity v. If an electron moves in a circular path, then we know that current is charge by time. So where t is time period, एक round का जो time होगा that is time period. ठीक है. And 1 by time period is frequency. तो I is E by nu. तो कई बार numerical में frequency given है, charge तो पता ही है, current आ जाएगा. Also करंट I is equal to E by T, टाइम पीरियड. एक राउंड में डिस्टेंस कवर कितना हो गया, 2 पाई आर, और वेलोसिटी v है तो I is EV by 2 पाई आर. तो इस पे भी ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा ये. ठीक है. नाउ अगर ये वायर नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हर जगह एरिया चेंज हो रही है. अगर करंट I 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर रिमेन सेम एवरीवेयर. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता. द करंट इज सेम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Now also I is dq by dt. अगर कोई कैलकुलस का प्रॉब्लम होगा तो सॉल्व कर सकते हैं. I is dq by dt, q is related, q is integration I dt. Now direction of flow of current is from positive to negative charge, and electron flows in opposite direction. So the direction of flow of positive charge gives the direction of current, but electron flows in opposite direction. देखो करंट इज स्केलर और वेक्टर. देखो इसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट इज स्केलर बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में 3 + 4 7 नहीं भी हो सकता, एंगल पे डिपेंड करता है, बट स्केलर में 3 + 4 इज ऑलवेज 7. सो सी दैट द करंट ऑल्दो having magnitude and direction, but it is still scalar because it does not obey vector law of addition. Now further, area for numerical, area under IT graph gives charge Q flowing. Area under IT graph gives charge. Area of this gives charge flowing. ठीक है. Now Ohm's law. This you have studied in class 10 also. The potential difference V across any conductor is directly proportional to the current flowing through it, provided the temperature, pressure, etc. remains constant. So V is proportional to I. You know that V is directly proportional to I, provided temperature, pressure remains constant. So V is proportional to I. V is equal to some constant R into I. So V by I is equal to R, and R is constant. And the constant R depends upon the length, shape and nature of the material of the conductor. Later on you will study, and you have studied I think in class 10 also, R is equal to rho L by A. Length, area and material पे भी depend करता है. ठीक है. Now further there are two important graphs, I versus V and V versus I. ठीक है. So I is equal to V by R, we know that. So I this side, V is this side. So slope gives 1 by R. Slope gives 1 by R. So R is this side, slope is this side. So resistance is inversely proportional to slope. तो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, देखो इसकी स्लोप ज़्यादा है तो इसकी रेसिस्टेंस कम होगी, इसकी स्लोप कम है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी. सो इस वायर की रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे लेस इसकी होगी. सो देयरफॉर RA इज RB, RA इज ग्रेटर देन RB एंड RB इज ग्रेटर देन RC. ठीक है. नेक्स्ट, इफ वी प्लॉट V दिस साइड एंड I दिस साइड, सो V इज इक्वल टू IR. नो स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू R. मोर द स्लोप मोर द रेसिस्टेंस. तो इसमें स्लोप ज़्यादा होगी, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी. So RC is greater than RB and RB is greater than RA. Now for numerical example number 1, let us see basic numerical. How many electrons pass through a lamp in 1 minute if the current is 3 milliampere? We know that I is Q by T, Q is NE by T. We have to find N is IT by E. I is given 3 into 10 to power minus 3 milliampere. Time is minute, change in seconds 60. Charge of electron we know 1.6 into 10 power minus 19. It comes out to be 1.125 into 10 power 20. Next, past बहुत पुराना क्वेश्चन जेई का है. This is the diagram. 3 ohm resistance है, 3 volt है, find current. तो you know that
इस लाइन से 2 पॉइंट निकल रही है, दिस टू आर इन सीरीज 6, क्योंकि रेसिस्टेंस इन सीरीज इज R1 प्लस R2, 6 into 3 पैरेलल, तो 3 into 6 by 3 plus 6, R1 R2 by R1 plus R2, we get 2 ohm, net resistance is 2 ohm, so Ohm's law is V by R, so 3 by 2, 1.5 ampere is the answer. Next question, numerical, find the charge flowing in 10 seconds. ये CBSE बोर्ड में आया था 2015 में. This is the current versus time graph. You know that area under ID graph gives the charge flowing. So area of triangle is half into base into height, half into base into height, plus area of rectangle 5 into 5. It comes out to be 37.5 coulomb. So very simple. Next है ये competition का question है, the current in a wire varies with time as I is equal to 3 plus 2t. How much charge pass a wire in time interval t0 to t4 second. ठीक है. And what constant current would transport the same charge in same time interval. तो अभी मैंने बताया था Q is integration I dt, I वेरिएबल है, करंट फिक्स नहीं है, तो वेरिएबल इज 3 plus 2t dt. ठीक है. अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, 3 बाहर आ गया, dt की t, 0 to 4 plus 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, t dt की इंटीग्रेशन t square by 2, 0 to 4 पुट करेंगे तो 28 कूलम आ जाएगा. और बी पार्ट में सेम टाइम में कितना करंट फ्लो करेगा, करंट इज चार्ज बाय टाइम, 28 by 4 दैट इज 7 एम्पियर. ठीक है. नाउ फेलियर ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर. ठीक है. ये हर जगह वैलिड नहीं है, V इज प्रोपोर्शनल टू I. In many cases the relation V is I is not obeyed. For example, ये 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल है NCERT के. नंबर 1, मेटेलिक कंडक्टर. लैब में वायर से काफ़ी देर तक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वायर गर्म हो जाएगा. गर्म होने से क्या होगा कि वायर स्ट्रेट लाइन VI ग्राफ होने की वजह, थोड़ी दूर तक तो स्ट्रेट लाइन होगा, जब वायर गर्म हो जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी और ये थोड़ा बेंड कर जाएगा वोल्टेज साइड. तो यहाँ तक तो ठीक ओम्स लॉ ओबे कर रहा था, लीनियर था, बट ये नॉन लीनियर हो गया. So this part is not obeying Ohm's law. So when the current passes through a conductor is very large, it becomes very hot and its resistance increases. So graph is not exactly a straight line. Similarly, ये last chapter में पढ़ना है semiconductor में. ये semiconductor डिवाइस होगा करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ. तो ये जब फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे, प्लस वोल्टेज देंगे तो ये ग्राफ है, नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो ये होगा. देखो ये तो बिल्कुल नहीं ओबे कर रहा Ohm's law. ये भी देखो अभी नहीं कर रहा प्रॉपरली. द नॉन लीनियर कर्व रिप्रेजेंट्स द फेलियर ऑफ ओम्स लॉ. एक और है थायरिस्टर है, ये पढ़ना है उसमें. थायरिस्टर ये इंजीनियरिंग में जाके पढ़ना होता है ये, तो वहाँ पे I वर्सेस V ग्राफ. ठीक है कि नहीं, ये इस टाइप का होता है. तो ये देखो ये तो और भी है. ए बी ग्राफ में ये वोल्टेज डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट इंक्रीज हो रहा है, एकदम ओम्स लॉ का उल्टा हो रहा है. तो ये तो बिल्कुल भी ओबे नहीं कर रहा ओम्स लॉ. द रीजन ए बी ऑफ द ग्राफ इज यूनिक as the current in this region increases with the decrease in voltage. ठीक है. ये ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है. Now let's see 3 more numericals. ठीक है. These are some standard numericals. ठीक है. So on Ohm's law, first question from NCERT. देखो NCERT में ये 4 ohm रेसिस्टेंस है, ये 1 है, 12 है, 6 है और ये 6 वोल्ट है और इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है. सो फर्स्ट है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. ठीक है. तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितनी होगी, पैरेलल में 4 पैरेलल R1 R2 by R1 plus R2, या 2 इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में तो R/2 होता है. तो 4/2 ये 2 आ गया, 2 plus 1 इन सीरीज 3 हो गया, और ये पैरेलल में 12 into 6 by 18, 72 by 18 4 हो गया. तो 2 plus 1 plus 4 7 और ये एक 1 8. तो ओम्स लॉ से करंट आई कितना होगा, V by R, तो 16 by 8 2 एम्पियर. तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है. ठीक है. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. राइट. इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 8 ओम हो गया. नाउ ऑब्टेन द करंट इन ईच रेसिस्टेंस. ईच रेसिस्टेंस से कितनी करंट जाएगी, ये यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, ये दोनों इक्वल रेसिस्टेंस है तो इक्वली डिवाइड आ जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो ये 2 एम्पियर आ रहा था, 1 एम्पियर इधर से जाएगा, 1 एम्पियर इधर से जाएगा ये, और फिर ये ज्वाइन हो करके 2 एम्पियर. तो ये आंसर हो गया थ्रू दिस 1 ओम विल बी 2 एम्पियर. नाउ अब यहाँ पे रेसिस्टेंस सेम नहीं है, तो अब यहाँ से कितना करंट जाएगा, तो एक शॉर्टकट है ये. सपोज इधर से I आ रहा है तो इधर से I1 कितना जाएगा, ये इफ यू वांट टू फाइंड दिस I1 दिस साइड, ये I1
तो इधर से कितना जाएगा, दिस इज सपोज I, तो I1 विल बी IR2 बाई R1 प्लस R2। ये शॉर्टकट है, ये मैंने कैपेसिटर में ही बताया, वहाँ पे उल्टा होता है ये, क्योंकि फॉर्मूला उल्टा है तो वहाँ पे चार्ज Q1 होता है QC1 बाई C1 प्लस 2, बट यहाँ पे रेसिस्टेंस में I1 इज IR2 बाई R1 प्लस R2। तो अब यहाँ से कितना करंट जाएगा, यू कैन सी दैट, ये हमने यहाँ पे किया हुआ I1, अब ये देखो 12 ओम से निकालना है, I1 इज इक्वल टू I कितना आ रहा है यहाँ पे 2 एम्पियर, I 2 एम्पियर है, तो ये हो गया 2 इंटू R2, 2 इंटू 6 12 हो गया, बाई 12 प्लस 6 18, तो 12 बाई 18 कितना हो गया 2/3, सो थ्रू 12 ओम इट विल बी 2/3 एम्पियर। ठीक है, तो अब 6 ओम से कितना जाएगा 2 एम्पियर माइनस दिस, 2 एम्पियर माइनस 2/3, तो 4/3 इधर से जाएगा। ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितनी होगी वी ए बी इज I इंटू आर ए बी, I 2 एम्पियर आ रहा है और इनकी रेसिस्टेंस कितनी है पैरेलल में 2, तो I इंटू 2 इंटू 2 4 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो गया। नाउ VBC, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी सिंपल, 2 एम्पियर जा रहा है यहाँ से, तो 1 इंटू 2 वोल्ट, तो यहाँ पे 2 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड फाइंड करना है हमने VCD, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, तो ये पैरेलल में हमें पता है 4 है रेसिस्टेंस और 4 है, तो ये 2 एम्पियर जा रहा है, तो 2 इंटू 4 8 वोल्ट। तो आई थिंक ऑल पार्ट्स आर वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, ईच रेसिस्टेंस R इज 2200, ये सबकी रेसिस्टेंस 2200 है। फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर A1, A2 एंड A3, ये हमें रीडिंग फाइंड करनी है, ये हमारा A3 है। ठीक है, देखो ये 220 वोल्ट सप्लाई है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, सबके अक्रॉस 220 वोल्ट होगा, तो करंट कितनी निकलेगी, ये निकल जाएगा। सिंस इन पैरेलल द वोल्टेज रिमेन सेम, देयरफॉर करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस 220 बाई 2200, ये 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर, तो ये भी 0.1 ये सबसे 0.1 एम्पियर जाएगा ये। ठीक है, अब कई बार न्यूमेरिकल में यहाँ मीटर लगा होगा कहीं यहाँ कहीं यहाँ, तो कैसे निकलेगी अब ये आंसर। A1 कितना होगा, देखो ये 1.1 एम्पियर ऐसे निकल जाएगा, ये भी ऐसे निकलेगा, ये इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, और ये 0.1 है, तो इधर से 0.3 जाएगा, तभी 0.1 है, तो इसकी रीडिंग 3 एम्पियर होगी, तो एमीटर 1.3 एम्पियर होगी। नौ इसके कितनी होगी, ये 0.1 और 0.1 ये सबको कलेक्ट कर रहा है, तो ये 4.4 एम्पियर हो गया। यहाँ A3 लगा हुआ है, ये तो इधर ही निकल गया, और ये 1 2 3 4 5 6 6 है, तो ये 3.6 एम्पियर हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट थ्रू द रेसिस्टेंस 3 ओम इज 0.25 एम्पियर। देखो ये सर्किट है, V वोल्टेज है, ये 7 8 9 5 1 6 3 2 ये रेसिस्टेंस है, और इससे जो करंट जा रही है ये क्वेश्चन में गिवन है, 3 ओम से कितनी करंट जा रही है 0.25 एम्पियर, एंड फाइंड द इनपुट वोल्टेज V, दिस वी हैव टू फाइंड V। ठीक है, V कितना होगा। नाउ हाउ टू सॉल्व इट, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। यू नो दैट ये दो लाइनें निकल रही है, तीनों सीरीज में, तो 6 हो गया, 6 पैरेलल 3 and 5 series 8 parallel 4, 9 plus 4 13 plus 7 20, so net resistance is 20, so from Ohm's law कितनी करंट बैटरी से आएगी, I is V by R, तो net resistance 20, current drawn from the circuit I is V by R, तो V by 20, क्लियर हो गया। Now you see that कि जब ये यहाँ से I करंट आ रहा है तो ये 8 है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा कॉम्बिनेशन आया था, ये 6 और 6 3 और प्लस 5 8, तो 8 इधर है और इधर भी टोटल मिला के 8 है, तो 8 में इक्वली डिवाइड हो जाएगा करंट, तो I/2 इधर से जाएगा, I/2 इधर से जाएगा। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो ये देखो ये 6 है, ये भी 6 है, तो I/2 फर्दर डिवाइड हो जाएगा, I/4 इधर जाएगा, I/4 इधर जाएगा। ठीक है, नाउ इधर से करंट I/4 जाएगा, तो I/4 गिवन है 0.25। ठीक है, तो I/4 इज गिवन 0.25 है ये। ठीक है, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ ये हो गया, I/4 इज दिस। नाउ I की वैल्यू भी नो, V/20 अभी कैलकुलेट किया, V/20/4 इज इक्वल टू 0.25,
सो सॉल्व करने पे सप्लाई वोल्टेज 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिक था, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंस। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक एंड लास्ट ईयर जेई मेंस के जितने भी सेट पेपर हुए थे, कम से कम 5-6 सेट पे से एक ऑब्जेक्टिव था ही। ठीक है ना, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सी दैट कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टेंसेस, जो कंप्यूटर वगैरह के अंदर जो रेसिस्टेंसेस होती है वो बहुत छोटी होती है, तो उसके ऊपर उसकी वैल्यू नहीं लिखी होती कि कितने ओम की है ये, तो उसमें कलर देख के पता करना पड़ता है कि वो इतने रेसिस्टेंस की उसकी वैल्यू कितनी है, तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो जनरली इसमें 4 कलर होते हैं, A, B, C, D, कई बार 3 कलर भी होते हैं। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? द कलर्स ऑफ A and B indicate the first 2 significant figure. Colors of A and B indicate the first 2 significant figures. The color C represents a decimal multiplier and the color D represents tolerance. अब ये होता क्या, अभी समझ आ जाएगा। इसको एक फॉर्मूला लर्न करने का, B रॉय, ये कैपिटल लेटर से होगा, B रॉय, और बाकी जितने हैं सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, B रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो ये शॉर्टकट तरीका है कलर कोड याद रखने का, नहीं तो ऐसे याद रहेगा ही नहीं। अब जैसे ये लेटर B रॉय, B रॉय, ग्रेट, सबका फर्स्ट लेटर है लेना है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। B ब्लैक, B ब्राउन, R रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, ब्लैक की वैल्यू नंबर 0, 1 से लेके ये 9 तक हो गया ये नंबर। ठीक है, ये डेसिमल मल्टीप्लायर हो रहा है, ये 10 to the power 0, इसे दिस इज रिटन एज 10 to the power 1, 10 to the power 2 एंड सो ऑन टिल 10 to the power 9। ठीक है, नाउ इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ऐसे तो ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, 3 भी आ गए तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ब्लू यहाँ था कि ब्लैक कहाँ था, ब्राउन कहाँ था, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये याद रखने का तरीका मैंने अपने तरीके से डिजाइन किया है कि बी से सबसे पहले ब्लैक लिखना है, इसका ऑपोजिट क्या होता है ब्लैक का, व्हाइट, तो व्हाइट नीचे आ गया, तो व्हाइट का जो ऑपोजिट होगा वो ब्लैक ऊपर आ जाएगा। फिर देखो ये सेकंड ब्लू होगा कि ब्राउन होगा, तो इसके लिए देखो ये ब्राउन टाइप का दिख रहा है ना, BRO, तो ये ब्राउन हो गया। ठीक है, ये बाकी इसमें ये बी में कंफ्यूज, जो बच गया वो ब्लू हो गया, और एक थोड़ा जी में प्रॉब्लम हो सकती है ये। ठीक है, येलो और ग्रीन बहुत नियरेस्ट कलर होती है, तो येलो के नजदीक ग्रीन होगा, जो यहाँ बच जाएगा वो ग्रे आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ कलर होता है गोल्ड। अगर फोर्थ में गोल्ड है, यहाँ पे गोल्ड है, तो ये 5% होती है टॉलरेंस। सिल्वर होगा तो 10% होगा, कई बार ये मिसिंग होगा तो नो कलर, वो उसकी टॉलरेंस 20% होती है। तो दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ इट। तो आई हैव सेट हियर 3 एग्जांपल व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स। जैसे ये कंपटीशन में आया था, इफ फर्स्ट स्ट्रिप बी येलो, इफ फर्स्ट स्ट्रिप बी येलो, सेकंड स्ट्रिप बी रेड, थर्ड स्ट्रिप बी ऑरेंज एंड फोर्थ बी गोल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट स्ट्रिप इज येलो, येलो का 4 है तो 4 आ गया। सेकंड है रेड, तो रेड का 2 है तो ये 42 लिखना है, ऐसे 42। थर्ड कलर डेसिमल मल्टीप्लायर होता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे ये। ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो थर्ड कलर क्या है, थर्ड स्ट्रिप कितना है, ऑरेंज, तो ऑरेंज के ऊपर 10 to the power 3 है, तो ये 10 to the power 3 हो गया, तो 42 into 10 to the power 3। ये प्लस माइनस टॉलरेंस है, तो ये गोल्ड है, तो गोल्ड का 5% हो गया ये टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस का ये मतलब होता है कि मान लो सपोज 1000 ओम रेसिस्टेंस आ गया, प्लस माइनस 10% टॉलरेंस है, तो मतलब उसकी वैल्यू 1000 की 10% 100 हुई, तो उसकी वैल्यू 900 to 11,000 ओम तक वेरी कर सकती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये भी कंपटीशन में आया था, वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड विथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिंग्स ऑफ ब्लू, ब्लैक एंड येलो कलर। What is the current flowing in the circuit? You know that current I is Ohm's law, V by R. V is given 30 volt, resistance find करना है ये। तो फर्स्ट कलर ब्लू है, तो फर्स्ट इज ब्लू, तो ब्लू क्या 6 है, तो ये 6 आ गया रेसिस्टेंस में। नेक्स्ट इज ब्लैक, ब्लैक इज 0, तो 60 लिखेंगे जैसे उसमें किया था 60। थर्ड कलर डेसिमल मल्टीप्लायर है, थर्ड कलर इज येलो कलर, तो येलो का 10 to the power 4 है, तो इंटू 10 to the power 4, तो ये रेसिस्टेंस है।
तो ओम्स लॉ से ये आंसर आ गया 0.55 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। 5-6 क्वेश्चन जेई मेंस में लास्ट ईयर आए थे डिफरेंट सेट में, इसमें से एक एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया है। उसमें ये डायग्राम बना था, रेड कलर, वायलेट कलर, येलो, ऑरेंज कलर एंड सिल्वर कलर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। सो वेरी सिंपल, द वैल्यू ऑफ आर विल बी, बोलो रेड क्या होगा, रेड कहाँ पे है, ये तो 2 हो गया। सेकंड कलर वायलेट है, वेयर इज वायलेट, 7, तो ये 27 हो गया। इनटू थर्ड कलर कौन सा है, ऑरेंज, ऑरेंज 10⁻³ इज ऑल्सो रिटन एज किलो, तो 27 किलो आंसर हो गया। प्लस माइनस सिल्वर है, व्हाट इज टॉलरेंस, 10%, तो प्लस माइनस 10% इज द आंसर।